just want to give a due mention to good piece of captaincy by Shikhar. Right. क्योंकि हम नहीं mention करेंगे शिखर धवन इंडिया को captaincy नहीं करेगा, nobody will call for it also. But मतलब he looked unplayable on most of the balls, and you know he kept the batsman in check. So it was a top class effort from Yuzvendra Chahal. और क्या ही कर सकता है वो. उसको कोई फर्क नहीं मेरे होते भी नहीं, कितना बड़ा करना पड़ेगा उसको. But I think this is Hi guys, welcome back to Cricket Mike. एक अच्छा मैच, ठीक ठाक सा मैच, इंडिया वर्सेस श्रीलंका. काफी श्रीलंका इंडिया ने काफी अच्छा खेला और श्रीलंका ने काफी अच्छा बैटिंग किया. Great fight. Well, first thoughts guys. Shashank. Easy victory यार. हाँ, easy victory I think. Yeah, easy victory. मतलब not in the sense कि पूरा easy था. Sometimes in the game we were sort of, you know, if the guys did not fight back तो हो सकता है हार जाते if we were too complacent. But last match के बाद हारते नहीं ये match, you know. So I mean there would have been a lot of, you know, I don't know. Dravid लगता है हम लोग को बाहर से, but Dravid is quite feisty, and there would have been a lot of words in the dressing room. After last game, तो मतलब I think उसका response तो मिलना ही था. Basically these guys don't like Dravid, Tendulkar, दादा, ये लोगों को हारना पसंद नहीं था पहले से. So चलो वो दिखता नहीं है ग्राउंड पे aggression और वो सब कुछ, but ये तो था कि हारना नहीं है भाई. हारना नहीं है भाई. That's the kind of people they were, ना, polite people. Dravid, Tendulkar, वो मतलब अपनी स्किल से रिस्पॉन्ड करते हैं. Right. Vignesh? Yes, easy win in the end. All the senior guys stepped up यार. The match मतलब जब भी हम लोग ऐसे behind the 8 ball for instances थे, भुवनेश्वर stepped up, अविष्का को उसने निकाला, फिर दीपक चहर का double wicket over, युजी चहल, I mean superb यार. So these three senior pros in the bowling काफी impressive, and at the end शायद मतलब बहुत एक unexpected collapse type आ गया था श्रीलंका से. So easy win at the end. हाँ. Let's start with India's batting with मतलब एक बहुत ही अच्छा बॉल, एक बहुत ही अच्छी विकेट, गोल्डन डक पृथ्वी शॉ को अपने डेब्यू पर मिला. उसके अलावा आई थिंक सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया. धवन 36 बॉल 46, नॉट द धवन काइंड ऑफ इनिंग, लाइक एक 140 के आसपास का स्ट्राइक रेट रखता है, बट इट वाज गुड इनफ. आई थिंक सैमसन अगेन got out on a good ball, decent ball. सूर्य कुमार यादव मतलब 50 नहीं डाला तो आई विल बी लाइक वेरी वेरी सरप्राइज्ड. अभी इस वक्त पे अगर सूर्या का 50 या फिर अच्छा इनिंग्स नहीं आता है तो सरप्राइज वाली बात होगी. हार्दिक पांड्या के बारे में एक थोड़ा सा अलग से बात करेंगे क्योंकि बहुत जरूरत है. एंड देन ईशान अगेन क्विक 20. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द बैटिंग? यार मेरे को अभी पृथ्वी शॉ का पहला कैन हैपन, एंड जब से बात कर रहे हैं पृथ्वी शॉ के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट आई मीन that can't happen in a big tournament. I'm just saying in like that. And Shikhar Dhawan, I think typical innings वो out तब हुआ था, वो बारिश आदि थी और he had to up the rate, and you know पता नहीं था कि कितने ओवर बैटिंग करने को मिलेगा. Duckworth Lewis come into play, so that caused his sort of downfall. Sanju, I won't say it was a great ball. I think it was a sort of a loose shot, बोल सकते हो. I think he was very lazy with it, and that is Sanju भाई. Middle of the innings 30 के आसपास आके lapse of concentration संजू का होता ही है कुछ भी करके. So I think he needs to work on that. I mean, should have been working on that till now, but now of course he should work on that, because हो गया 2-3 साल of inconsistency. You know, talent देखते हैं, इतना अच्छा खेलता है, but then inconsistencies आती है. सूर्या उसका dismissal पसंद नहीं आया भाई मेरे को. I think that is where Surya needs to show that he is 31 years old. You know, that is not where he should lose his wicket, especially जब एक बॉल पहले छक्का मार चुका है वो. I think previous ball he hit for 6, right? Before that's how he reached. And the same delivery, yeah. I think, I mean, Ishan, played well in the end. Came एक रन आखिरी में और भागना चाहिए था. मेरे को बहुत गुस्सा है आखिरी बॉल पे उस पे. But yeah, I think that was a summary from me. I have a different topic for Surya, Sanju, everyone, like जो हार्दिक के बारे में नहीं बोला है मैंने, इसलिए हार्दिक की ना will speak. Right. Vignesh, what do you think about the batting or Prithvi? Let's start with Prithvi.
पृथ्वी का तो यार मतलब जस्ट सेटल ही हुए थे देखने के लिए और भाई साहब वापस जा चुके थे. मेरे So को that देखा was भी नहीं भाई. so पहुंच it ही was रहे थे all too टीवी तक. sudden. सोनी लिव हाँ. टाइम ही ले रहा था आने के लिए. Right. So, but matlab, not saying कि it should happen, but there is a certain technical chink जो अभी भी थोड़ा सा है. मतलब जो ऑस्ट्रेलिया का था, he has definitely worked on it, but थोड़ा सा करना बाकी है क्योंकि the way he met the ball, उसके दोनों मतलब पैर खुल गए थे. That is now how an opening batsman should face first up. So that being said, but ठीक है, मतलब he was the only one who did not get a start, I believe. उसके अलावा शिखर धवन वेरी सेल्फलेस इनिंग्स यार इन द कॉन्टेक्स्ट की मतलब ही हैज हिज contention as well for the opener slot, but he tried to push the run rate and in a way he perished trying to up the ante. उसके अलावा जैसे आपने हर एक संजू और सूर्या, maybe सूर्या is way ahead of other people in the contention, but he has to मतलब play a game wherein batting first stays there till the end kind of a thing. अगर एक 80 मतलब कोई बनाता सेट बैट्समैन तो शायद 190 200 हम लोग अचीव कर पाते. संजू लुक गुड फॉर व्हाटएवर ही वाज देयर एट द क्रीज. The same thing which मतलब and it was on the cards यार मतलब one normal ball will take his wicket, so that should not happen at this juncture. Being a big fan, but it should not happen. Ishan Kishan मतलब in a way looks a bit out of shape for me and पता नहीं यार मतलब I'm not so convinced with Ishan Kishan, and I guess he is not doing justice to himself as well, और मतलब he's not helping his cause basically. Do you think Ishan Kishan is a that वो वाला slot वाला batsman है इतना नीचे आने वाला? नहीं. अभी तो जगह थी नहीं उसके लिए, but do you see any place for him there, or he is just right there up there like 3 number 4? मेरे हिसाब से तो यार 3 नंबर 4 भी he's shown with Mumbai Indians की 4 भी खेल सकता है, but उसके बाद नहीं. I think उसके बाद नहीं. 4 के correct. Yeah, I think he's devastating against spinners. I think he can sort of take them apart in the middle overs. That is the best position for Ishan Kishan. वो short ball के साथ struggle करता है, हमने अब देख लिया. Other people have also found that out. ईशान किशन मेरे को I think थोड़ा सा over enthusiastic भी है right now. He's over trying, मेरे को ऐसा लग रहा है, because वो भी देख रहा है कि it's so difficult to get into that squad of the World Cup. He desperately wants to. I think he's trying to do that कि मैं 180 से खेल सकता हूँ, बाकी अगर सब लोग 150 वाले हैं तो I can play with 180 strike rate. I think as sort of desperation to be in that squad. वो थोड़ा सा desperation में over trying, rightly said by Shashank. Let's talk about Hardik for a while यार. मतलब let's talk about his fielding as well. He dropped a catch. Batting maybe मतलब इरफान पठान ने एक ट्वीट किया है that he doesn't want to believe that he's a good batsman of a bad balls, like ऐसे में कुछ है, but that's true. I mean कि हार्दिक पांड्या के साथ अगर ये दोनों भी आगे के दो खराब जाते हैं तो we have seen what Deepak Chahar can do with bat as well. मतलब थोड़ा सा that he can do, right? We have Shardul Thakur as well as a bowling all-rounder. I'm not talking about the caliber of Hardik Pandya for sure. मतलब being a big fan of his कि मेरे को नहीं लगता कि उसके जैसा hitting कोई कर पाता है. But if you're not getting runs from him, then you need to look for an option as well. And अभी recently हमने 2 innings देखे, तो what do you think about Hardik Pandya? थोड़ा सा लूज लग रहा है, और अगर ये दोनों के अगले दोनों मैचेस में अगर नहीं परफॉर्म करता है, then Indian team has to think about it. अगर हार्दिक पांड्या 4 ओवर करा रहे तो आई थिंक ही इज एन अकम्प्लिश्ड इनफ बॉलर मेरे लिए कि वो टीम में एज अ बॉलर ही खेल रहे. तो हार्दिक पांड्या टीम में तो रहेगा. अब हाउ डू यू इम्प्रूव हिज फॉर्म? आई थिंक जैसे बीसीसीआई के मेमो जाते हैं आईपीएल टीम्स के पास कि इस बार क्या कराना है, किसको कहाँ खिलाना है. इस बार मुंबई इंडियंस के पास मेमो जाने वाला है कि हार्दिक पांड्या को 3-4 पे खिलाओ फॉर द रेस्ट ऑफ द आईपीएल. एटलीस्ट 4 पे. और अभी भी इस सीरीज में भी आई थिंक और ऊपर खिलाना चाहिए, बिकॉज ही नीड्स टू फेस बॉल्स यार. उसको एक मैच के पहले बोलना चाहिए 3 पे जा तू, एंड यू हैव टू स्कोर 100 टुडे. आई डोंट माइंड हाउ मेनी बॉल्स यू प्ले, you just go score 100 today. You need to spend time on the pitch. You need to get used to the pitch of the pace of the pitch. Or Premadasa anyways is a difficult a pitch to bat on for the likes of Hardik Pandya. But I'm just saying Hardik Pandya finds a place for me nonetheless.
let's see what happens. Before I ask Vignesh, ये conversation इतना है ना विघ्नेश के साथ भी और शशांक के साथ भी, क्योंकि we have seen what Hardik Pandya can do, और इसकी वजह से वो desperation है कि यार हार्दिक पांड्या आना चाहिए. Vignesh, what do you think? Yes, big believer Hardik Pandya, and अगर शायद वो अगले 2 गेम में भी मतलब सक्सेसिव बॉल पे गोल्डन डक भी आउट हो जाता है, even then he is one of the sure starters in the 11 T20 वर्ल्ड कप में. That is Hardik Pandya for you. But सिर्फ मुझे एक worrying sign ये लगा कि when he was first facing up to a spinner, Hardik looked for a defensive shot, and that isn't Hardik यार. मतलब Hardik has seen worse days than this. But he looks low on स्पिनर मिलता है तो मारता है वो. हाँ, मारता है वो. मतलब he is the one who has taken on spin very comfortably before, you know, Pant coming in and stuff. So that for me was a worrying sign. I guess he's very low on confidence, at least with the batting form. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको बॉल खिलाओ भाई. उसको एक मैच में बोलो कि जा तू पूरा खेल के आ, मतलब कि तू ओपनिंग भी भेज दो, बोला कि तू खेल भाई, तू अंदर खेल एक बार, बैटिंग कर एक बार अच्छे से, लंबा खेल के आ एक बार. True. और भाई, and anyways, Vikas, with the this moving to the Middle East, Hardik Pandya is deadly over there with the bat. यार उसको सूट भी करेगा वो. You know, those absolutely flat tracks, small boundaries. True bounce. Like I said कि ये conversation इतने बार होता ही इसलिए क्योंकि we sort of want Hardik Pandya to be in the squad, right? Yeah. Is that deadly? In the response, श्रीलंका ने 126 किया. थोड़ा सा like I said before कि श्रीलंका ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, थोड़ा सा डेंजरस लग रहा था जो वरुण चक्रवर्ती को जो स्वीप्स मारे 2-3. उसके अलावा इंडियन बॉलिंग के बारे में जैसे अपने विघ्नेश ने बोला कि सीनियर प्लेयर ने अच्छा काम किया. भुवनेश्वर कुमार इकोनॉमिकल इनिशियली भी, और he ended up getting 4 wickets. दीपक चहर पहले 2 ओवर में 20 रन खाए जरूर थे, लेकिन उसके बाद में ही केम बैक एंड 2 विकेट लिया. कृणाल पांड्या ने एक पहला ब्रेक थ्रू दिया इंडिया को. युजवेंद्र चहल 4 ओवर 19 रन 1 विकेट, जो आखिरी चौथा ओवर था, दैट वाज ब्रिलियंट. Brilliant. Yeah, and हार्दिक पांड्या को भी 1 विकेट मिला. What do you think, guys, in the bowling? मतलब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले कि एक मतलब आई थिंक जहां से गेम थोड़ा सा चेंज हो वो भुवनेश्वर का विकेट था आफ्टर वरुण चक्रवर्ती's फर्स्ट ओवर. You know, he bought Bhuvneshwar back. क्या लगता है, what do you think he got lucky, or do you think it was a thought out strategy and it played well? Vignesh? मेरे लिए एक्चुअली किसी ने मतलब शायद क्रिकबस पे भी मेंशन किया था, द मोमेंटम चेंजिंग ओवर वाज द 6th ओवर आई फेल्ट, वरुण चक्रवर्ती वाला, जहां पे ही जस्ट गेव 2 रन्स. उसके पहले मतलब हर फर्स्ट ओवर में, हाँ, इन हिज फर्स्ट ओवर वहां पे एंड शायद अविष्का फेल्ट द नीड टू take on Bhuvi since he was expensive in the first over itself. So that was a byproduct of Chakravarti's over. वहाँ पे उतना skill मुझे नहीं लगा, to be honest. But no, not in that sense. Not from Bhuvi. I'm asking just from Shikhar Dhawan's captaincy perspective. That was a good one. You think that was a good decision or he got lucky? No, that was a good decision. I think Since it was a good Bhuvi had just bowled 1 over, that was a very good decision. And I was also thinking कि अगर तू Varun Chakravarti, now you've built, you've got a wicket, now you don't get Varun Chakravarti back, hold him back for the last overs where the lower middle order batsman को expose करो उसको Varun Chakravarti को, and probably they'll find it difficult to sort of play him. So नहीं हुआ. I think Sri Lanka got stuck into it, but I'm just saying, just want to give a due mention to good piece of captaincy by Shikhar. क्योंकि हम नहीं mention करेंगे शिखर धवन इंडिया को captaincy नहीं करेगा, nobody will call for it also. But जितने time के लिए है, I just want to give a due credit for that. Otherwise, Yuzi was the highlight of today. The pace at which he bowled. भाई श्रीलंका की pitch aid कर रही है उसको. I think you have to say this. You can't just say कि यहाँ अच्छा कर रहा है तो World Cup में UAE में अच्छा करेगा. क्योंकि he struggled a lot UAE में. लेकिन मेरे को लगता है कि यूजी को ऐसे विकेट्स मिलना भी, मतलब ऐसे विकेट्स मिलके यहाँ पर अच्छी बॉलिंग करना भी यूजी के कॉन्फिडेंस के लिए, इट्स कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा. आई थिंक कुलदीप के लिए भी, यूजी के लिए भी ये कॉन्फिडेंस की बात बड़ी थी कि यार एक टाइम पे हम दोनों रूल कर रहे थे, कुलचा बहुत टाइम तक चल रहा था, बट अचानक से दोनों की धार कम हो गई, एंड दैट वाज समवेयर अफेक्टिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द होल टीम एज वेल, क्योंकि तुम्हारे मिडिल ओवर्स में आके विकेट नहीं मिल रहा है, जडेजा भी क्विक आके डाल के निकल जा रहा है. तो आई थिंक कॉन्फिडेंस के लिए बहुत सही रहेगा यूजी के लिए स्पेशली.
क्या लगता है विघ्नेश? Yes, to start with, मुझे एक्चुअली लग रहा था कि राहुल चहर इज आवर फर्स्ट प्रीमियर स्पिनर. मुझे ऐसे लगा कि दे विल प्ले राहुल चहर एंड वरुण चक्रवर्ती, एंड मे बी मतलब यू नेवर नो कि राहुल चहर might have taken more wickets, might have looked more impressive. That is ifs and buts. But Chahal, what was expected of him, he delivered more than that. मतलब he looked unplayable on most of the balls, and you know he kept the batsman in check. So it was a top class effort from Yuzvendra Chahal. और क्या ही कर सकता है वो. Fantastic. Also more leg spins than googlies यार. भाई वो बोल्ड कैसे युजवेंद्र चहल ऐसे बोल्ड कहाँ करता है यार वो मतलब top. मतलब यार मैंने आजकल लेग स्पिनर्स को यही देख रहा है कि आते ही सीधा तुम ऑफ स्पिन डाल दो ना यार. तुमको शुरू ही करना है वैसे तो तुम आके वही तुम गुगली पर, बट इट वाज लाइक ट्रेडिशनल लेग स्पिन काइंड ऑफ बॉलिंग. या और भाई 72 74 यू नो द स्पीड जिस पे फेंक रहा था वो by kilometers per hour. I mean that was the highlight of his bowling today. And the speed is Varun Chakravarti actually was bowling quick, a bit quicker. Yeah, he was 100 के आसपास डाल रहा था, 95 100 95. उसका और पांड्या का सेम था स्पीड. And Varun Chakravarti is more like a flight थोड़ा सा. नहीं भाई, पर वरुण चक्रवर्ती तेज ही डालेगा. सुनील नारायण तेज डालता है क्योंकि उसका गेम ही मोस्ट पीपल पिक हिम ऑफ द पिच. अगर वो धीरे कराएगा तो पिच से आसानी से पिक हो जाएगा, और वो तेज डालेगा तो पीपल आर नॉट गोइंग टू पिक हिम एज वेल. सो उसका गेम ही वही है, वो तेज डालेगा ही. Any thought on वरुण चक्रवर्ती? मतलब क्या लगता है वरुण चक्रवर्ती पहला गेम इंटरनेशनल सर्किट, क्या लगता है तुमको उसके बारे में? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला हो 10, उसका एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा. उसको कोई फर्क नहीं. मेरे होते भी नहीं, कितना बड़ा करना पड़ेगा उसको. But I think this is the case with mystery spinners यार. अभी आप सुनील नारायण को देखो, you can never guess यार ये प्रेशर में है, ये क्या कर रहा है. You have no idea. वो छक्के मार रहा है उसको. He had no idea. उसने स्टंपिंग कर दिया, अरे कोई बात नहीं. मतलब पता नहीं. बैटिंग में भी सुनील नारायण तो वैसे ही दिखता है भाई. बैटिंग में भी मतलब वैसे ही दिखता है. But I guess either of you had called in the show कि वरुण चक्रवर्ती might win us the World Cup. है ना? some शशांक ने बोला था. That is something. He is a joker in the pack. Yeah, he is the joker in the pack. Yeah, he is the joker in the pack भाई. वही मतलब जो लोग आईपीएल में खेलते हैं उनने तो खेला है वरुण चक्रवर्ती को, पर जिन लोगों ने नहीं खेला है वरुण चक्रवर्ती को आईपीएल में, उनके लिए तो वो वैसे भी मिस्ट्री स्पिनर ज्यादा हो जाता है. सो आई थिंक वो तो है हमारे लिए. पहला वनडे खेला है इंडिया, आज पहला मतलब डेब्यू है इंडिया के लिए उसका. So he's a relatively new quantity, in spite of playing in the IPL for 2 years now successfully. Still a relatively new quantity भाई. But Rahul Chahar भी भाई, as मतलब मैं तो बोला था, but Rahul Chahar is just so good यार. नहीं खेल रहा है अभी वो, but that's different. But Rahul Chahar is like very intelligent with his bowling. और हाइट उसको बहुत है. राहुल चहर का जो और यूएई में सक्सेसफुल हो चुका है. टेस्टेड ऑलरेडी. तो वहाँ पे एनीथिंग ऑन श्रीलंका के बैटिंग के बारे में कुछ है, या असलंका है बस? उसके बारे में तो बात कर लिया. बस कोई बैट्समैन मुझे एश्योर्ड लगे यार. एक तो अविष्का फर्नांडो और एक असलंका, ये दोनों ही एश्योर्ड लगे. एंड इवन द नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स. अविष्का भी आई मीन यू कैन सॉर्ट ऑफ से कि अभी बुमराह के सामने आएगा तो वी कैन से कि मतलब यू नो पेसियर बॉलर्स, थोड़े हमारे बॉलर्स में मीडियम पेसर्स हैं यहाँ पे. जेन्युइन पेस नहीं मिली है उसको, पिच भी वैसी नहीं मिली है. मेरे को सबसे अच्छा बैट्समैन असलंका ही लगा है इनकी टीम में. Without also a debutant I guess उनके लिए. Yeah, making a sequel. He's good भाई. But मेरे को यार श्रीलंका क्रिकेट पता नहीं what crisis are they talking about. They have a great young team भाई. I honestly think so. अगर ये टीम खेलती रहेगी ना तो इस टीम में टैलेंट है for sure मतलब. और भाई एक चीज पता, हसरंगा को आईपीएल टीम नहीं उठाएगी इस बार कोई. Yes यार, मेरे को लगता है कि हसरंगा हो गया, इवन असलंका भी अभी मतलब देखा जाएगा और आगे. असलंका तो यार बैटिंग मुझे करुणारत्ने लगता है. करुणारत्ने है ना वो, चमिका करुणारत्ने, वो डेफिनेटली लगता है कि उसको उठाएंगे. गुड पेस. ओके, मेरे को सबसे ज्यादा हसरंगा का लग रहा है कि हसरंगा भी है. यस हसरंगा को उठाएंगे, कोई तो कोई उठाएगा हसरंगा को. और ही कैन बी अ ग्रेट बेट फॉर समवेयर वेयर यू नो चेन्नई जैसी जगह. धोनी कैन यूज हिम मतलब लाइक मैड. अगर राइट. या the conversation always ends on Dhoni, how Dhoni will. So yeah guys, that was that. शशांक, तुम्हें कुछ पूछना था दीपक चहर के बारे में? हाँ यार, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. दीपक चहर देख एक ही जगह है
वर्ल्ड T20 स्क्वाड में, वर्ल्ड T20 स्क्वाड में वर्ल्ड कप के लिए, out for Deepak Chahar and Bhuvneshwar Kumar. Who are you guys taking? Simple question. I'm taking Bhuvi. I'll take Bhuvi क्योंकि Bhuvi डेथ में भी डालेगा बोले. I don't know. ये दीपक Vignesh, am I getting a different view from you? Yeah, he Because is. Bhuvi- बना रहा है. दिख रहा है. बन रहा है. नहीं वो होगा तो उसके में पहले से होगा, विघ्नेश बनाएगा नहीं. हाँ नहीं आई विल स्टिक विद दीपक चहर यार. मुझे दीपक चहर मोर T20 ऑप्शन लगता है. मे बी इन ओडीआईज भुवी माइट बी अ बेटर ऑप्शन, बट T20s में मतलब व्हेन यू नो ही मेक्स थिंग्स हैपन. जैसे आपने देखा है कि जब पावर प्ले है, इवन ऑन हिज गुड डे ही पिक्स 3 to 4 चंक में विकेट्स लेता है, which might not be the case with भुवी. हुआ होगा, but you know he makes things happen जब आपको चाहिए. On your good day you need your bowler to demolish the opposition, and Yeah. Deepak Chahar under helpful conditions he can do that. इसके चलते but जैसा Bhuvi लगता है. can do that also. बट helpful मेरे conditions को में. लगता है विघ्नेश जब उसका दिन नहीं रहा ना तो फिर वो खत्म कर देगा अपने टीम को. ऐसा मतलब we have seen अगर उसको अगर पावर प्ले में अगर उसको स्टार्ट नहीं मिला, then he That becomes- is my point, Vignesh, कि वो liability हो जाता है. अगर पावर हाँ. पावर पॉइंट बोल रहा हूँ, पावर प्ले में Rough work. अग- Good morning. अगर हाँ, I get your point, but अगर आप IPL 2021 देखो, दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम केसेस ही था. भुवी was neither effective with the new ball nor with the old ball. And Bhuvi, बट if ओल्ड not, बॉल के साथ भुवी और का डाल सकता है ना. I haven't seen Deepak डालता Chahar. तो ये भी है, मतलब he has also matured as a death bowler, but it also depends on the kind of combination you play. If you are playing with Siraj and Bumrah, you don't necessarily need a Chahar or a Bhuvi at the end. वहाँ तो So मतलब already today, who are the commentator? Ajay Jadeja and who's the other guy with him? Commentator Sanjay Manjrekar, right? Yeah. So they put out their sort of combined 16 बड़ा for the फालतू World Cup. हाँ, वो लोगों ने सिराज को नहीं लिया है, and they are taking Ishan, and they have put like a slash between Bhuvi and Deepak. They are taking who? बड़ा Ishant फालतू team. Sharma. ईशान किशन. नहीं, ईशान किशन. तो सिराज और ईशान किशन को डाला है. मैं बोल रहा हूँ कि ईशान किशन को लिया है उन्होंने टीम में, पर सिराज उनकी टीम में नहीं है. ओके. आई एम जस्ट सेइंग कि मेरे को वही गड़बड़ लगी, इसलिए मैं वो मेंशन कर रहा हूँ. बाकी मेरे लिए सारे नेम्स ठीक लग रहे थे. For me it's Bhuvi, I think. For Vignesh, I think it's Deepak. Yeah, मैं भी I think I will tend towards Bhuvi यार यहाँ पे, क्योंकि death overs में I think he gives us a dimension which I think Deepak Chahar does not give. मेरे को और एकदम बेसिक एक नूब फैन की तरह बोलूंगा ना, तो अगर एक ओवर में 9 रन चाहिए और तूने बॉल तेरे मतलब भुवनेश्वर के हाथ में बॉलिंग है ना, I'll be more assured than किसको देगा तू? 9 डिफेंड करने हैं तो एक्चुअली ये पर उन दोनों का ये यूज नहीं है. आखिरी ओवर तेरे को पता है कि नहीं, एक्चुअली नहीं, कई सिचुएशंस में सेकंड लास्ट ओवर बुमराह कराता है एंड यू नीड समबडी टू बोल द लास्ट ओवर. कवर इट अप इन द Then Siraj will bowl the last over ना. अभी सिराज कर सकता है. सिराज कैन डू इट. अभी सिराज के ऊपर मेरे को भरोसा आ गया है. Yeah, guys. Thank you guys. Thank you so much. Thank you guys. अगले मैच के बाद जल्दी. एंड क्रिकेट तो देख रहे हो, उसके साथ साथ ओलंपिक्स भी देखो. ओलंपिक्स में भी काफी ज्यादा मजा चल रहा है. चीयर फॉर इंडिया गाइस, चीयर फॉर इंडिया. और अगर आपने मीराबाई चानू कौन है ये अगर आपको जानना है तो यहाँ पर ऊपर एक लिंक आ जाएगा. ऊपर इधर आई पे आएगा, इधर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देना ना, इसलिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा. वॉच दैट वीडियो एज वेल. इट्स एक्चुअली मतलब पहले जान जाना चाहिए था आप लोगों ने, लेकिन ठीक है, अभी मेडल जीतने के बाद में भी जान सकते हो. एनीवे, cheer for India for Olympics as well and next match as well. So thank you so much Vignesh bhai, thank you so much Shashank. See you soon. See you guys.